मोस्टली ऑलमोस्ट 80% जो लिखा हुआ है ना, तो हम में से बहुत लोगों को उसका आइडिया है। तो लास्ट का जो पार्ट है ना, उसको पकड़िएगा। अगर पकड़ में आए, एकदम लास्ट में है, जो ही पढ़ो ना। Just every situation gives an opportunity to get out of set patterns, tendencies we are living, and comfort zone our mind might wish to sustain. And this opportunity has manifold fruits, from breaking the patterns of monotonous life as well as brings more charm and beauty in life. All it needs is a little courage, a soft smile of acknowledgement of the divine for its kindness and magnanimity. And it makes life blossom to its fullness. Human existence is much more dynamic than we could imagine. And so it could be the most dynamic expression of existence itself. It is embedded in it, and the natural forces are leading us towards that, and that only, whether we like it or not. Our agreement to this makes it easier for us and speeds up the process. Spiritual path of wisdom, meditation, Sudarshan Kriya helps in raising our energy levels and uplifting consciousness to handle this more effectively and efficiently with a smile. It is bound to happen. Again, I am reinforcing, whether we like it or not, agree or not. That is the reason nature has so much contrasts around us in each and every sense. Living standards, belief systems, natural resources, philosophies, weather patterns, variety in flora, fauna, living beings or non-living beings, it does not matter. Nature or divine is expressing itself in its full form. And the more we are trying to make it uniform or bring uniformity, the more it is breaking out and expressing itself. For the time being, it might give an illusion that it's settling down the way we want, but then it breaks it in such a manner that it is able to shake most of us. Come, let us join hands and एक create a sangha. एक अभी तक तो, अभी जो आगे लिखा है ना, वो अब उसको ध्यान से सुनिएगा। हाँ। Come, let us join hands, create a sangha to make things easy for each other, the basis of which could be wisdom. Let wisdom be the connecting link, not that we belong to the Sangha. Let wisdom help us more than anything else. Let us come together with some diversity in music, culture, outlooks, personal beliefs, likes and dislikes. Nature wants to thrive together, नेचर not वांट just live together. नेचर वांट्स अस। Nature wants us to thrive together, not just live together or exist together. Technology can help, is helping. Let's use it for that purpose. एक मिनट, Let wisdom.
अब ठीक है, अभी वाला ना, और अब आगे और ध्यान से सुनिए। हाँ, पढ़ो। Let will and values be the guiding light. Let's us all come together and work together, enjoy together to bring the wisdom and values, the techniques and understandings that we have got to each and everyone. Let us all give everyone a chance to say no. At least they had an opportunity to say no. Many don't even have the opportunity to say no to beauty. Let them add value to the beauty of life, of existence, by however they wish. Let everyone add to bring more and more contrast to existence, because human mind can figure out wisdom only in contrast. Or as Pujya Gurudev says, opposite values are complementary. Live, dance, smile, be happy, or just enjoy your freedom to agree or not. Be the you wish to be. Just be. तो ये पोएट्री जैसा हो गया नहीं जी? एनीवे, हिंदी में ट्रांसलेट कर पाओगी? कोशिश करती हूँ समझने। हर परिस्थिति हमें मौका दी है, हमें सेट पैटर्न्स, हमारी तो मानसिकता, हाँ, हमारे विश्वास, हमारे रहन सहन, या हमारे चलो छोड़ो, कोई नहीं, रहने दो। इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, इतनी तुरंत तुरंत तो नहीं होगा। वो लास्ट वाला ऑन द पार्ट स्पॉट नहीं ना हो है। पाए। हाँ, लास्ट वाला जो पार्ट है ना, जस्ट बी वाला स्वामी जी। लेट विजडम एंड वैल्यूज बी द गाइडिंग लाइट। वो लाइक बार फिर से पढ़ लो। इंग्लिश में ही पढ़ो स्वामी जी। हम्म। Let wisdom and values be the guiding light. Let us come together and work together, enjoy together to bring the wisdom and values, the techniques and the understandings we have got to each and everyone. Let us all give everyone a chance to say no. At least they had an opportunity to say no. Many don't even have the opportunity to say no to beauty. Let them add value to the beauty of life, of existence, by however they wish. Let everyone add to bring more and more contrast to existence, because human mind can figure out wisdom only in contrast. Or as Pujya Gurudev says, opposite values are complementary. Live, dance, smile, be happy, or not. Just enjoy your freedom to agree or not. Be the you wish to be. Just be.
हम्म। अब क्या करें? स्वामी जी आप हिंदी में जितना हो सका है बोल दीजिए तो कुछ बोल सकते अच्छा, ये जो लिखा है वो। हैं। जी जी थोड़ा सा सब कुछ पकड़ में नहीं आया। अच्छा, क्या हुआ ना, हम लोग नए फ्लैट में शिफ्ट किए तो एक रूम है, एक बड़ा सा, वो कहते हैं ना ड्राइंग डाइनिंग रूम, पर उसमें भी वो बंकर बेड टाइप्स लगा हुआ है। फिर हमने, जो रूम है उसमें बहुत बड़ा गद्दा था, पलंग के ऊपर, उसको इस निकाल दिया। किचन है, बाथरूम वॉशरूम एक ही है। और आज, कल सुबह सब चले गए, आज मैं अकेला हूँ। शायद रात तक आएंगे कुछ लोग और, 2-3 दिनों के लिए। तो मैंने ये लिखा है कि हर परिस्थिति, हर स्थिति ना हमको एक मौका देती है। हम जिस तरह से जीवन जी रहे हैं, जो भी जीवन जीने का तरीका है, जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, उससे बाहर निकलने के लिए। पर ये मौका जो है ना, मौका तभी लगता है जब मन ज्ञान में होगा तब। नहीं तो ये तनाव का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। जैसे हम बैंगलोर आश्रम गए, हम में से सब लोग गए ही हैं ऑलमोस्ट, और हमको ऐसे जगह रहने के लिए दे दिया, या ऐसा कमरा दे दिया जिसमें लोग, जो भी है, हमारे रूटीन से सेट नहीं हो रहा है, हमारे लाइफ स्टाइल से सेट नहीं हो रहा है। हमको सुबह उठना है और वो देर रात तक बात कर रहे हैं, हमको सोने नहीं दे रहे। अच्छा, ये परेशान कर सकता है, पर अगर ज्ञान में होंगे ना तो परेशान नहीं करेगा। फिर क्या होता है, ज्ञान हमको ऐसा दिखाता है कि एक मौका है, हम जो जीवन एक ढर्रे पे चल रहे थे, जिसमें हम सेट हो गए थे, कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए उससे बाहर निकलना है। और जब बाहर निकलते हैं तो जीवन में ना निरस्ता नहीं रहती। ये भी हमको नहीं समझ में आता कि कुछ समय के बाद एक ही ढर्रे पे चलते चलते हम फिर बोर भी होने लगते हैं। नहीं, तो ये मौका है, पर मौका तभी दिखेगा जब ज्ञान रहेगा जीवन में, तब। नहीं तो फिर वो बहुत बड़ा तनाव का कारण बन जाता है। अब इसका, इस मौके का अगर हम लाभ उठाते हैं तो बहुत सारा लाभ है। और फिर इसके लिए चाहिए क्या? तो एक तो ज्ञान पे चलने की इच्छा हो, और साथ ही साथ थोड़ा तो बहादुर बनना पड़ेगा हमको। क्योंकि चीजें हमेशा हमारे अनुकूल रहेगी ना तो फिर कमजोर पड़ जाएंगे। इसीलिए कोविड में भी हमने देखा था, जिन लोगों को जितनी ज्यादा सुविधा मिली हुई थी उनको उतनी ही अधिक परेशानी हुई थी। जिनको सुविधाएं नहीं थी, संघर्ष करने की क्षमता ने उनको बहुत हद तक आगे बढ़ा कर रखा। और हमारा जो जीवन, इंसान का जो जीवन है, प्रकृति, मेरा ऐसा आज तक जो मैंने देखा है, इतनी जगह घूमा है फिरा है ना, इंसान का जीवन सबसे वृहत रूप से, प्रकृति जो अपने आप को अलग अलग रूपों में दिखाती है, अलग अलग जगहों पे दिखाती है। कहीं गर्मी बहुत है तो कहीं ठंड है, कहीं बर्फ है, कहीं सूखा पड़ा हुआ रेगिस्तान है। हो सकता है हमको रेगिस्तान ना अच्छा लगता हो, पर मेरा मानना है, ये ना प्रकृति अपने आप को हर रूप में अभिव्यक्त करना चाहती है। हम उसको सीमित करना चाहते हैं, क्योंकि इंसान चाहता है सब चीज हमारे कंट्रोल में, कंट्रोल में रहेगा, नियंत्रण में रहेगा तो हम बड़े खुश रहेंगे। पर प्रकृति होने नहीं देती। जैसे इस बार जिस ढंग से गर्मी पड़ी,
फिर अचानक से पूरे देश में ही आंधी तूफान बारिश है, अब पूरा देश ही थोड़ा ठंडा हो गया, ठंडक भी आ गई। तो और सिर्फ इंसान का जीवन ऐसा है जो प्रकृति की इस अभिव्यक्ति को पूरी तरह से अभिव्यक्त कर सकता है। और बाकी चूंकि हमारे पास विवेक है ना, इसीलिए ये संभव है। विवेक अपने पूर्ण रूप में, हमारे पास स्वतंत्रता है इसीलिए विवेक है, विवेक है इसीलिए स्वतंत्रता है। जानवरों का अपना जीवन का ढर्रा है, मौसम आएगा तो उनका, समय आएगा तो भूख लगती है, मौसम आएगा तो उनको प्रोक्रिएट करना रहता है, सब प्रकृति के अनुसार चलता है, बहुत कम ही वो उनका ना टूटता है। इसलिए अगर हम सहमत होते हैं, अच्छा हमेशा ऐसा होते रहे तो बहुत घबराहट हो जाती है, बहुत तनाव हो जाए, लेकिन जब भी जीवन में थोड़ा अगर कुछ ब्रेक हो रहा है ना, तो अगर हम सहमत हो जाते हैं तो फिर हमारा जीवन बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। बढ़ेगा तो जरूर, पर हमारी सहमति उसको आसान बनाती है और उसकी इंटेंसिटी और स्पीड को बढ़ाती है। हमारे न सहमत होने से भी, हमारे न चाहने से भी प्रकृति छोड़ेगी तो है नहीं, क्योंकि उसको जैसे चलना है वो चलेगी। और हम जिस पथ में, इस पे क्या होता है, हमारी ऊर्जा हम बढ़ा के रख सकते हैं, हमारी चेतना को हम ऊपर उठा सकते हैं। हमें से बहुत लोग जो जितने समय से भी हैं, हम जब शुरू शुरू में आए थे तो थोड़े समय के बाद क्या हुआ ना, ऊर्जा बढ़ी। और फिर ऊर्जा का जो बढ़ाव था वो एक ऊपर वाली स्थिति में जाके ठहरा। मतलब क्या, अब हम बढ़ी हुई ऊर्जा में भी स्थिर हो गए। कभी कभी वहां से भी नीचे आते हैं तो फिर हमको भी परेशानी होती है, दुख होता है। लेकिन हम जो लोग साधना नहीं करते, ज्ञान पथ में नहीं है, सुदर्शन क्रिया ध्यान नहीं कर से, उनसे हमारी एनर्जी लेवल ना अब हमेशा बढ़ी रहती है। सही है ना, ये तो हमने भी देखा ही है। ये बात मैं बोल रहा हूँ, ये भी है। और इससे क्या होता है ना, चीजों को हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है, हो सकता है। कैसे? मुस्कुराते हुए। अगर मुस्कुरा के हैंडल नहीं कर सकते तो फिर हैंडल करने का तो हो जाएगा, बट और प्रकृति में इतना विरोधाभास क्यों है पता नहीं, लेकिन ये बात पक्की है कि हमारा मन ज्ञान को ना विरोधाभास में ही पकड़ पाता है। जो गुरुदेव कहते हैं ना कि विपरीत मूल एक दूसरे के पूरक हैं। हम गर्मी को तभी समझ पाते हैं जब हमने ठंडा देखा। इसीलिए ज्ञान जो है ना हमेशा कॉन्ट्रास्ट में ही आता है, समझ कॉन्ट्रास्ट में बढ़ती है। अगर कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा, विरोधाभास नहीं होगा ना, तो विरोधाभास नहीं, विरोधात्मकता नहीं रहेगी ना, तो ज्ञान जल्दी पकड़ में नहीं आती। ये प्रकृति को हमको आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसीलिए कभी भी पृथ्वी पे ऐसा नहीं होगा कि सब जगह मौसम बहुत अच्छा रहेगा, सब जगह ठंड रहेगी, सब जगह गर्म रहेगा, सब जगह बारिश होगी, ऐसा नहीं होने वाला। सब जगह एक ही फिलॉसफी चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। प्रकृति नहीं चाहती है वो। और इसके बावजूद प्रकृति चाहती है सिर्फ हम जिए नहीं, हम इसमें आगे बढ़े। चाहे कोई, अच्छा, मतांतर छोड़ छोड़ भी दें, तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में ही इतने मतांतर है, इतना पद पंथ है, जो देख के ही बहुत आश्चर्य होता है। कोई अगर कृष्ण को मानते हैं तो वो शिव को नकार ही देते हैं। कुछ कृष्ण को मानते हैं तो शिव को नकारते नहीं है, लेकिन शिव को की पूजा नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे।
कोई शिव वाले हैं, पूजा करने वाले, मानने वाले, तो वो विष्णु जी को, कृष्ण को नकार ही देंगे। कुछ लोग मानेंगे पर नकारेंगे नहीं। तो इतना मतांतर होते हुए भी, इतना इतना वेरिएशन होते हुए भी, हम क्या साथ में जी सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं साथ में? मेरा मानना है कि संभव है, पर इसके लिए ज्ञान बहुत आवश्यक है और ध्यान भी आवश्यक है। नहीं तो क्या होता है ना कहीं हम चाहते हैं सब लोग हमारी तरह सोचे, सब लोग हमारी तरह दुनिया को देखें, नहीं संभव है। इसलिए मैंने ये भी लिखा, जो हमारे यहाँ साइलेंस प्रोग्राम के लास्ट एक वीडियो दिखाते हैं ना, कि हमारा जो कनेक्टिंग लिंक है, हमारा जो जुड़ाव है ना, जैसे हम भी जो लोग यहाँ आते हैं, हम लोग जितने लोग भी आते हैं ग्रुप में, तो ग्रुप एक साथ आता है तो संघ बन ही जाता है। हम लोग जितने लोग आर्ट ऑफ लिविंग में हैं, आर्ट ऑफ लिविंग संघ है। पर संघ है, संघ में है इसीलिए महत्वपूर्ण नहीं, हमारा जो कॉमन कॉमनैलिटी, जो हमारा जो लिंक है ना, वो ज्ञान का लिंक है। ये नहीं कि हम आर्ट ऑफ लिविंग में। अब आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, ये हमको भी सोचना पड़ेगा फिर। एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है आर्ट ऑफ लिविंग, सिर्फ एक क्या बोलेंगे, कहने के लिए केवल एक पथ नहीं है ये। जिन मूल्यों को, जिस ज्ञान को लेके चल रहा है, अगर उसको पकड़ेंगे तो आर्ट ऑफ लिविंग में साथ चलना आसान रहेगा। और जब पहले के जमाने में गुरुदेव आज सत्संग में बोल रहे थे ना कि जब बारिश होता था तो लोग खेती बाड़ी में बिजी हो जाते थे, फिर फसल काटना बिजी हो जाते थे, कम्युनिकेशन में इतना फास्ट नहीं था। तो लाइफ में आप अपने ही धरने में फंस जाएंगे, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग तीर्थ स्थान बनाए कि तुम जाओ तो सही, अपने उससे निकलो बाहर तो तुमको दिखेगा दुनिया बहुत बड़ी है। और जो लास्ट में मैंने लिखा ना, हम इंसान क्या करता है, हर चीज को एक जैसा बनाने का कोशिश करेगा, उसकी प्रवृत्ति में है। हम घर के अंदर सब लोग कंफर्टेबल हो सकें, टेम्परेचर कंट्रोल करने सकें, रोशनी को कंट्रोल करने सकें, हवा को कंट्रोल, वो चाहता ही यही है। लेकिन प्रकृति क्या करती है, इतने जोर जोर से तोड़ती है ना कि सबका बैंड बज जाता है। बजना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बजना चाहिए? जब ज्ञान, कैसे नहीं बजेगा? जब ज्ञान में होंगे तब। कोई और चीज हमको नहीं बचा सकती। और क्या, तो हमारा जो आगे बढ़ने का फिर से एक जो कॉमन लिंक है ना, वो सिर्फ जिन मूल्यों पे गुरुदेव मूल्यों पे जीते हैं, जो उनके जीवन में दिखता है, वो होना चाहिए। जो ज्ञान गुरुदेव ने दिया ना, वो होना चाहिए। अच्छा ये पता नहीं मेरे में कहाँ से आया, मुझे नहीं पता। मैंने ना आश्रम जब जाते हैं, मैंने ये देखा, मैंने रियलाइज किया, सबसे पहले ना हम जान पहचान के लोगों को ढूंढते हैं। जान पहचान के लोगों में भी उन लोगों को ढूंढते हैं जिनसे हम कनेक्ट कर पाते हैं। सबसे तो कनेक्ट नहीं कर पाते हम, नेचुरल है। सबसे कनेक्ट कर लेंगे तो गुरुदेव की चेतना अवस्था हमको भी मिल जाएगी। फिर हम अपने क्षेत्र के लोगों को भी ढूंढते हैं, राज्य के लोगों को भी ढूंढते हैं, और सब ना देखिएगा बैठेंगे वही ग्रुप में ही बैठेंगे, जिन लोगों से कनेक्ट करते हैं, अपने राज्य के लोगों के साथ, जान पहचान के लोगों के साथ। फिर क्या होता है, हम बहुत ज्यादा, हमारी चेतना ना खिल नहीं पाती। तो ये बात ना मुझे दिखी, और फिर गुरुदेव से भी मैंने सुना। फिर मैंने क्या किया, मैं जानबूझ के फिर ऐसी जगह जाके बैठता था जहाँ मेरा कोई जान पहचान का नहीं। हमको कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है।
सत्संग में गुरुदेव के साथ बैठे, आप ऐसे ग्रुप में या ऐसे जगह जाके बैठिए जहां आपको कोई जानता नहीं। उस समय अपनी चेतना की अवस्था देखिए। ये ना हमारे ग्रोथ को, आज इंटरनेट भी थोड़ा बारिश के कारण यहाँ भी प्रभावित होता है, देखिए। हम सोचे सिर्फ भारत में ही होता है, नहीं। ये हमारे ग्रोथ को ना, ग्रोथ का मतलब यहाँ हमारा जो चेतना का खिलाव है ना, उसको बना के रखता है। अनजाने लोगों से मिलना, ऐसे लोगों के साथ सहज होना जो हम, जिनको हम जानते नहीं। और लास्ट में जो मैंने लिखा है ना वो, अच्छा, हमको बहुत सुंदर पथ मिला है, सुंदर ज्ञान मिला है, सुंदर टेक्निक्स मिले हैं बहुत लोगों को। तो हम जब लोगों के पास जाएं ना, तो हमको लोगों को, ये मैंने लिखा है कि ना बोलने का मौका देना चाहिए। हमको उनके ना से परेशान भी नहीं होना चाहिए, पर उनको ना बोलने का मौका तो देना चाहिए, या हाँ बोलने का मौका। ये बात पकड़ में आई क्या? हम अगर नहीं जाएंगे ना उन तक, तो उनके पास ना बोलने का मौका ही नहीं। और उनके ना बोलने को क्या हम रिस्पेक्ट दे सकते हैं क्या? मेरा पॉइंट ये है। Swamiji, regarding what is this? वट जो हम वैल्यू जी रहे हैं, जो ज्ञान जी रहे हैं, जो कुछ हमको मिला है, वो सबके पास नहीं है। सबके पास तो बहुत दूर की बात है, अधिकतर जनसंख्या के पास नहीं है। तो क्या हम उनके पास जा सकते हैं इस भावना से कि उनको कम से कम एक बार ना बोलने का मौका तो मिले? पर हम जब जाते हैं ना, तो उनका ना हमको प्रभावित करता है। दोनों में अंतर समझ में आया क्या? हम प्रकृति की ये सुंदरता नहीं देख पाते कि सबके पास ना बोलने का और हाँ बोलने का ऑप्शन होना चाहिए। पर हाँ या ना बोलने का ऑप्शन तब होगा जब उनके पास कोई चॉइस होगा। अभी तो चॉइसलेस है, वो उनके पास है ही नहीं कुछ। जब उन तक, उनको पता ही नहीं है कि ये भी एक ऑप्शन है, तब तक वो हाँ क्या बोलेंगे, ना क्या बोलेंगे। जो जी रहे हैं सो जी रहे हैं। ये बात पकड़ में आई क्या? हम्म। स्वामी जी, ये ना और हाँ किस लिए बोलेंगे? किसी चीज के लिए हम जो ज्ञान है लोगों तक लेके जाते ही हैं ना, कि भाई हाँ, अगर आप इस पथ पर आएंगे तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है जीवन को सुंदर बनाने का, और सुंदर बनाने का, बहुत सुंदर बनाने का। तो उनके पास जाते हैं तब तो उनको ना बोलने का मौका लगता है ना। हम्म, उन इस ना बोलने का हम आदर सम्मान कर सकते हैं क्या? ये बात मैं बोल रहा हूँ। पर जब हम उन तक गए ही नहीं, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। क्या ना और क्या हाँ, जो जी रहे हैं सो जी रहे हैं। उनको पता ही नहीं है तनाव मुक्त जीवन भी हो सकता है। पर वो हमारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए। अगर प्रकृति ने उनको यहाँ हमारे साथ रखा है तो ठीक है, उनको ना बोलने का अधिकार है। क्यों सब लोग मेरी तरह ही सोचे? और ये ना सुंदरता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसीलिए जब गुलदस्ता बनता है ना, तो गुलदस्ता में फूल पत्ती डंठल सब होते हैं, होना चाहिए। ये सुंदरता को बढ़ाता है। और ज्ञान तभी समझ में आता है कंट्रास्ट में। इसीलिए अपोजिट वैल्यूज हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही करते हैं। हमने पता नहीं कितना हद तक इस चीज को रियलाइज किया, या हमारा मन अभी भी ये कहीं ना कहीं पकड़े हुए है कि अपोजिट वैल्यूज एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। अब देखिए, इसका कॉन्ट्रास्ट देखने से ना ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कि अपोजिट वैल्यूज जो हैं, जो विपरीत मूल्य है, एक दूसरे के साथ संघर्ष में नहीं है। वो एक दूसरे का मूल्य बढ़ाने के लिए है। ये बात पकड़ में आई क्या?
हमको क्या लगता है वो संघर्ष में है एक दूसरे के साथ, जो पहले था। और गुरुदेव ने हमको समझाया कि नहीं नहीं, विपरीत मूल्य संघर्ष में नहीं है, वो एक दूसरे की सुंदरता बढ़ाते हैं, बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के प्रति सजग करने के लिए। नहीं तो हमको पता ही नहीं चलेगा। यही। स्वामी जी रिकॉर्डिंग बंद करेंगे, मुझे कुछ बोलना है इसी बारे में। एडवांस कोर्स के मौन ध्यान के लास्ट में बोलते हैं ना कि हमारा जो लिंक है वो ज्ञान का लिंक है, पर हम इस लिंक को पकड़े चाहे नहीं पकड़े, हमारा मन किसी और तरह से ढूंढना चाहता है एक लिंक। ओ, मैं अगर लातूर गया हूँ तो लातूर के लोगों से, जिनको जानता हूँ, उनसे रिलेट करता हूँ। ऐसा क्यों है? क्या इतना काफी नहीं है कि हमारा मूल्य, ज्ञान, हमारे गुरु एक है? इतना काफी नहीं क्या हमारे मन के लिए? तब समझ में आया कि ना, मन कहीं ना कहीं अपनी पुरानी प्रवृत्तियों को ना छोड़ने में उतना सहज नहीं महसूस करता बहुत बार। क्योंकि जितनी बार हमारा मन टूटता है उतनी बार ऐसा लगता है जैसे हम टूट गए। हमारा अस्तित्व, हमारा सोच समझ, ये सब बनता जा रहा है। खैर। स्वामी जी, हम्म। ये ज्ञान में रहते हुए भी वो जल्दी से समझ में अंदर क्यों नहीं जाता, और ये जाता भी है तो भी जी बस ठीक है। आ, वही लास्ट वाला जो था वही था ना, परसों जो हमने बात किया। क्यों ऐसा है कि क्यों? क्योंकि पुरानी आदतें पहले से जो बहुत भरा हुआ है ना, वो हम खाली नहीं कर पा रहे अपना कप। पर ये भी तो है ना कि वो अगर जिस लोगों से ऐसा हुआ तो वो लोग भी बहुत दिनों तक भरते गए, एक दिन ब्लास्ट हुआ तो वो जल्दी से जाता नहीं है, ये भी तो हो सकता है। होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, वो भी होगा। पर ये है कि अगर हम साधना करते जाएंगे, पर केवल व्यक्तिगत साधना से नहीं होगा। हमको बार बार मौन ध्यान के गहराई में, क्योंकि मौन ध्यान से जो हम गहराई बार बार, जो मैंने बोला ना कि जब हम आर्ट ऑफ लिविंग में नहीं थे तो जो हमारा एक नॉर्मल एनर्जी लेवल था, और आर्ट ऑफ लिविंग में जब हम सुदर्शन क्रिया ध्यान करने लगे, ज्ञान सत्संग में जाने लगे, तो उससे जो हमारा एनर्जी लेवल, जो नॉर्मल लेवल ऊपर बढ़ गया ना, वो अब ऊपर बढ़ गया। तो वही चीज वहां भी है। तो इसलिए बार बार जब हम ध्यान में, मौन में जाते हैं ना, तो हमारी गहराई और बढ़ जाती है। ये भी हमने देखा है कि नहीं देखा है? इसीलिए जब अष्टावक्र गीता या पतंजलि योग सूत्र आजकल कभी सुनते हैं तो लगता है, अरे ये तो कमाल ही है। क्यों? हमारी गहराई बढ़ गई ना। तो छोड़ नहीं सकते, बार बार करना पड़ेगा और करते रहना पड़ेगा। और साथ ही ज्ञान को भी, ज्ञान की गहराई भी हम ही को एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। तब रास्ता थोड़ा सहज हो जाएगा, स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा, जिस तरह से। ये स्पीड स्पीड वाली बात, तो ये लगता है कि स्पीड नहीं बढ़ता, ऐसा बढ़ लगता है। बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। नहीं भी बढ़ता तो खुश रहना है, और क्या। ठीक है। क्योंकि ये स्पीड भी जो नहीं बढ़ता ना, इससे भी दुखी हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये भी दुखी समझ में आता है नहीं, इसके कि लिए भी नहीं दुखी होना है। ओ ठीक है ना, अभी थोड़े समय के लिए वैसा छोड़ देना, जाके फिर मौन ध्यान में बैठ जाएंगे तो बढ़ ही जाएगा।
स्वामी जी, लास्ट में आपने लिखा है ना कि आप जैसे हैं वैसे रहो, हम्म बी द पर्सन यू विश टू बी। हम्म जैसे मतलब स्पीड बढ़ी तो भी ठीक, नहीं बढ़ी तो भी ठीक। हाँ, सोनी को याद आया जस्ट बी। हाँ, फिर तो चॉइस ही नहीं है ना, वो तो चॉइस ही नहीं है। बढ़ी तो भी ठीक, नहीं बढ़ी तो भी ठीक। हाँ, सोनी का फेवरेट जस्ट बी याद आ गया। वही वही जस्ट बी। हमको क्या है ना, एक बीमारी सी हो गई अपने आप को भी बदलने की और साथ ही साथ दुनिया को भी बदलने की। और फिर क्या होता है ना, नॉर्मली बदलने का होड़ इसलिए है कि हम वर्तमान से संतुष्ट नहीं हैं, और असंतुष्टि से आगे बढ़ के आप कहाँ संतुष्टि पाने वाले हैं। सबकॉन्शियस माइंड में और चेतन मन में असंतुष्टि भरी हुई है, तो कहाँ पाएंगे, क्या पाएंगे। संभव नहीं। असंतुष्टि के धरा नींव पर संतुष्टि का धरातल और मकान नहीं खड़ा हो सकता। स्वामी जी, ये हम्म ना ना बोलने वाली जो बात बोल रहे हैं कि ना सुनना खराब लगता है किसी से, तो इसके लिए हमको ये भी लगता है कि प्रैक्टिस या बार बार अगर होता है इस तरह से तो भी चेंज आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोर्स पहले लेते थे, अपना ही एक्सपीरियंस बताएं तो ना जब भी सुनते थे तो बहुत मन विचलित होता था। पहले पहले एकदम कैसे होगा, कैसे बोल देता है, कैसे मनाएंगे, कैसे तैयार करें, ये चीज है। अब नहीं होता है इतना, तो लगता है कि हाँ ना तो बोल सकता है, क्यों नहीं, वो उसकी मर्जी है। हाँ हम्म, बोले या ना बोले, मेरा काम है कन्विंस करना, ठीक है कर पाए तो ठीक है, नहीं तो उसकी मर्जी। अब ये समझ में आता है, तो हाँ वही। समझते बार बार होते रहने से भी करेक्ट वो कर करेक्ट। सकते हैं। पर वही है ना, हमको इसमें लगे रहना पड़ेगा। और ये स्वाभाविक रूप से हुआ हमारे, हमने ऐसा सोचा नहीं था कि एक समय ऐसा होगा कि ये हमारे लिए ऐसा हो जाएगा। हमने कभी ये नहीं सोच के रखा था कि एक समय बढ़ी हुई एनर्जी लेवल हमारे लिए नॉर्मल एनर्जी लेवल हो जाएगी, पर ऐसा हुआ। तो वो जो गुरुदेव बोलते हैं ना, तुम एक बार यहाँ आ गए तो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ हो रहा है। बस कन्नड़ में बोलेंगे तो चिलमाड़ी हो ही जाएगा वो। गुड नहीं। आज बारिश हो रही है और आज एक हैप्पीनेस स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। गुरु के आने से क्या हुआ, हाँ तो ये वाला पॉइंट, नॉलेज पॉइंट, ज्ञान सूत्र, इसकी गहराई अब जाकर थोड़ी बहुत समझ में आ रही है। भले जीना शुरू किया था, लेकिन कॉन्शियस माइंड में अब समझ में आ रहा है कि जो विरोध नहीं है साउंड, इसने बोला कम है थोड़ा सा। जो विरोधात्मक दिखता है वो विरोधात्मक होता नहीं है। ये बात हम जीने भी लग गए गुरु के साथ आने के बाद, ज्ञान में आने के बाद। हम्म हमारे जीवन में सुंदरता को बढ़ाने के लिए और हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए करें फिर ध्यान 10 मिनट। हाँ, स्वामी जी, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कुछ क्या थोड़ा चीज। सा।
आराम से बैठिए। आंखें बंद, दोनों हाथ भी एक आरामदायक स्थिति में। चेहरे पर भाव हल्केपन का हो। एक गहरी लंबी सांस छोड़ें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। केवल विश्राम। जो कुछ हो रहा हो आसपास बाहर शरीर में मन में, उसको छोड़ दे। जैसा है छोड़कर विश्राम कर।
एक गहरी लंबी सांस लें, छोड़ते हुए सब छोड़कर विश्राम करें। गहरा विश्राम। और सांस लें और छोड़ें। एक गहरी लंबी सांस लें,
छोड़ें, शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए आंखें खोल